Good morning, students. Today I am going to start a new topic of chapter electricity of class 10, electric power. In class 9 also you have read about the power, and power is equal to W by T. But right now in this chapter you will read about the work done by electricity, work done by electric current. Okay. Now P is equal to W by T. P is equal to P means power, W is equal to work done, and work done by electric current by time taken. Is it clear? And electric power is also a scalar quantity. और इसका यूज हम लोग करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की पढ़ेंगे, कमर्शियल यूनिट के बारे में। जो आप अपने घरों में, जो आपके घर में जो बिजली बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो यूनिट में आता है। और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और बहुत सारे फार्मूलाज भी इसी से आएंगे। पावर का 3, 4, 5 फार्मूला होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उससे भी क्वेश्चन रहते हैं, 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। इज इट क्लियर? तो हम लोग बच्चों इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो नाउ फर्स्टली इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक power, it is defined as the amount of work done, the amount of work done by electric current in 1 second. 1 second is called electric power. Or you can also define it as the work done, the rate of doing work in electric current, that is also called electric power. Or you can also define as the amount of electric work done in 1 second, that is also electric power. Okay. The rate of, or एक और लिख लीजिए, समझ में आएगी। The rate of doing electric work is called what? Electric power. Is it clear? There are many differences. There are many definitions also. So you can write yourself your own ideas. Only concept main in physics क्या होता है? Concept main होता है। आप concept से definition अपना बना सकते हो अपने language में। Now it is denoted by okay, later. Now it is denoted by P. And P is equal to W by T. Is it clear? P is equal to W by T, where W is equal to what? Work done. Work done किसमें? In electric current. Work done in electric current. And time क्या होता है? Time तो जानते हैं, time and P means, you know very well, P means what? Power. P means power. So
पावर का ये क्या होगा, डेफिनेशन। पावर का डेफिनेशन भी लिखा आपने पावर, तो इसी को हम डिफाइन किए कि द रेट ऑफ व्हाट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड what, power. Or we can also define it, the amount of work done, the amount of work done by electric current in 1 second, that is what, that is power, electric power. तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो काम किया गया हो एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग वर्क कहते हैं, वर्क डन बाय व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर की बात। Is it clear? Now, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Okay? It is a scalar quantity. And SI unit of electric power is, चलते हैं तो फिर हमने बताया था P is equal to W by T. And you know that what is the SI unit of work, that is joule by second, means you can say that joule per second, that is also what, that is also SI unit, or you can write here watt। okay, अगर एग्जाम में हो कि what is the SI unit of electric power, अगर joule per second होगा वो भी सही है और watt होगा वो भी सही है। Is it clear? Okay, now अब आपको क्वेश्चन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन हो गया 1 वाट, जैसे हमने पढ़ाया था डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 जूल, तो ये भी हो सकता है कि भाई डिफाइन 1 वाट, तो 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करें? वेरी सिंपल, P is equal to W by T, मीन्स क्या, W is 1 जूल by 1 सेकेंड, that is 1 वाट। ओके, तो क्या है, if 1 जूल of work done in 1 second, that is called 1 watt. 1 watt, that is 1 joule of work done in 1 second, that is called 1 watt. Is it clear? एग्जाम में 1 नंबर पूछता है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब आता है अदर यूनिट ऑफ, हायर यूनिट ऑफ पावर, हायर यूनिट ऑफ पावर, हायर यूनिट ऑफ पावर, पावर का और हायर यूनिट, जैसे किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, ये सब याद करने की चीजें हैं, इसको आपको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, कितना वाट, 1000 वाट, और 10 to the power 3 वाट। 1 मेगावाट is equal to 10 to the power 6 वाट, मतलब 1/60, ठीक है। एंड 1 हॉर्स पावर कितना, 1 हॉर्स पावर मीन्स 746 वाट, 746 वाट। 1 HP, और सिंपली आप बोलते हैं, जब आप मोटर वोटर खरीदने जाते होंगे तो बोलता हो कितना है, 1 HP, हाफ HP, 2 HP, 3 HP, तो 1 HP कितना है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ओके,
इज इट क्लियर? आपको ये इस 10th लेवल तक का ये चीज थोड़ा याद रखना होगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वाट, 1 horse power is equal to 746 watt. Is it clear? Now now कुछ हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर। पावर का बहुत सारे फार्मूला होंगे, उसमें हम लोग चलते हैं। नाउ वी नो दैट P is equal to W by T. Be careful and just look at the whiteboard carefully and listen. Okay? सब समझ में आएगा, बहुत इजी है। W by T और हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा है, ठीक है? H W is equal to I square RT पढ़ा है कि नहीं बच्चों? पढ़ा है। और W किसके बराबर होता है? इसके बराबर हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। ये लिखे चाहे ये लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस W की जगह पे अगर हम इसमें पुट करेंगे, then we put the value, then what? I square RT means T कैंसिल, एक फॉर्मूला क्या होगा? P is equal to I square R। फर्स्ट फॉर्मूला P means power, I means electric current, R means you know ना रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे आ गए, एक फॉर्मूला यहाँ आ गया। नाउ अगेन, ठीक है? नाउ अगेन ओम्स लॉ के द्वारा, ठीक है? बाय ओम्स लॉ V is equal to IR। ओके, now R is equal to, or R is equal to what? V by I. Okay, V by I by Ohm's law, by Ohm's law, ठीक है? Now we put the value of R in equation first, then what happened? I square into V by I is cancel, then you will get what? P is equal to means potential difference into electric current, potential difference into electric current, दूसरा फॉर्मूला होगा। Again I is equal to what? V by R। I is equal to V by R। Now again I, the value of I in equation 2, we get what? V into I by R। मतलब V square by R। So P is equal to what? V square by, this is also, this is 3। Okay, now now P is equal to VI। Again Ohm's law क्या है? P is equal to IR। Now in place of V we put the IR into I, so P is equal to also I square R। This is also there, तो ये तो है इसमें, ठीक है? लेकिन ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, we can find out the problem। no, हो गया? V का हमने डाला, V is equal to IR डाल दिया, R की वैल्यू हमने डाला, ठीक है? R की वैल्यू भी डाली, I का भी वैल्यू डाला, E का भी डाल दिया। तो ये सब सारा क्या है? ये सब आपका पावर का ही फॉर्मूला है। क्या है पावर का? I स्क्वायर R, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर पावर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। फिर पावर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय R रेजिस्टेंस। और ये तो आप इससे भी है, इससे भी बना सकते हो, इससे भी ला सकते हो, ठीक है? तो these are the important formulas and which is important for electric power। Is it clear?
नाउ अब आता है बहुत अच्छा है एक है कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, अब ये क्या है कॉमर्शियल यूनिट, क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, we know that right now we know that electrical power is equal to electrical energy by time. No, then what happened? Or electrical energy is equal to what? Electrical power into time. And electrical power, the SI unit of electric power, you know what? That is watt into second. हमने अभी देखा है इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का वाट इनटू सेकेंड। तो ये हमारा क्या है, ये स्मॉल यूनिट के लिए हम काम करते हैं। फॉर बिगर यूनिट, फॉर इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, जब हमारे घरों में आते हैं जो यूनिट, जो हमने बिजली बिल, जो हम लोग जो बिजली का जो बिल देते हैं, जो बिजली बिल हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो यूनिट में आता है और डेट वो यूनिट में आता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। ये क्या होता है 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट। जो आपके घर में होता है, आप जो आपके घर में जो आते हैं कि भाई 1 यूनिट आया, 5 यूनिट आया, 10 यूनिट आया, 15 यूनिट आया, जो भी है व्हाटएवर यूनिट हैज कम, जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, तो उसमें फिर आपको जितना यूनिट आया उससे 7 रुपीज या 5 रुपीज आता है पर यूनिट, उससे इंटू करते हैं, उतना बिजली बिल हम लोग देते हैं बिजली। तो उसी को हम लोग, तो 1 kWh मतलब 1 किलोवाट कितना होता है 1 यूनिट के बराबर। तो 1 किलोवाट मींस 1000 वाट, अभी मैं बताया था। और आवर को कितना करेंगे 60 into 60 मतलब सेकंड हो गया। हमने अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली थी, वाट इंटू सेकंड आया था बच्चों। चलिए अब कितना आया 1000 इंटू 3600 वाट इंटू सेकंड, ठीक है। देन हाउ मच, जब आप कैलकुलेट करेंगे 3.6 into 10 to the power 6 जूल हो जाता है बच्चों। वो 1 kWh, 1 kWh is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल हो जाता है। जो ये इसको भी, अब ऐसा नहीं है कि यही है, अगर मान लेते हैं हम डायरेक्ट इंटू करेंगे तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर उसका दूसरी भी और भी इसको करेंगे ना, जब इंटू करेंगे तो कितना 36 टू दी 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, इतना इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल भी हो सकता है। फिर इसको अगर हम इसको डेसिमल में लाएंगे तो फिर वो आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इतना आपको बुक वगैरह में दिया रहता है, लेकिन वैसा भी इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। 1 kWh इक्वल टू हाउ मच 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। हमारे जो
हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं सब ऐसी फॉर्म में आते हैं, 1 kWh के फॉर्म में। फिर उसको हम जितना आता है, जितना यूनिट आता है, उससे हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपका वो आपकी जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम रहता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, यूनिट में रहता है, यूनिट को फिर इंटू करते हैं कितने पर यूनिट रेट से, तो फिर आपको वो इतने पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर आपने समझ गया। इलेक्ट्रिक पावर वंस अगेन, जस्ट इलेक्ट्रिक पावर इज the rate of doing work by electrical energy, electricity, the rate of doing work by electric current, that is called what? Electric power. And P is equal to W by T. फिर हमने उसमें W is equal to हमने हीटिंग इफेक्ट बात की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने जूल्स लॉ में जो पढ़ा था, H is equal to I square RT और W is equal to I square RT, उसमें पुट किया, there are 3 or 4 formulas we get from it. तो वो पावर क्या है? तो पावर का जो यूनिट हुआ, पावर का क्या हो गया? वाट होता है। फिर हमने एक कमर्शियल यूनिट निकाली, जो कमर्शियल यूनिट जो बड़े बड़े जो कमर्शियल यूज करते हैं, जिसमें kWh की बात हमने की, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो जो हमारे घर में इसके यूज होते हैं, तो जब भी अगर आप अपने से भी अगर उससे पता कर ले, जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं जो मीटर रीडिंग करने वाले, उससे सिर्फ आप पूछ लो कि कितना यूनिट हुआ, तो फिर समझ जाओ उतना यूनिट से इतना मल्टीप्लाई करोगे आपकी वो, ताकि वो आपको वो चीट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, मैं इस पे एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यस, नाउ बच्चों, स्टूडेंट्स, look at the whiteboard and read carefully, and this is very easy numericals. The resistance of electrical heater is 200 ohm, and you know very well कि ohm किसका यूनिट है? That is the resistance. So what is given? Given that R is equal to 200 ohm. And it draws a current of 1 ampere. एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का, then 1 ampere. Calculate its power. We have to find power and potential difference also. Two things we have to find. तुरंत रिमाइंड करेंगे, हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ भी पढ़ा है, पावर भी पढ़ा है, जूल्स लॉ पढ़ा है, सब पढ़ा है। तो चलिए, VI पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमने V is equal to W by Q भी हुआ, लेकिन W यहाँ नहीं, by Ohm's law V is equal to IR. I is given कितना है? 1 ampere, and R is also given 200 ohm. That is what? 200 volt. तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ हमको रिमाइंड करना था। हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ भी पढ़ा है, पावर भी पढ़ा है, सारे हमारे दिमाग में है फॉर्मूला, तो हम इजी बना लिए। फिर क्या है? वी हैव टू फाइंड व्हाट? पावर इज इक्वल टू क्या? पावर इज इक्वल टू W by T हुआ, लेकिन हमने बहुत सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, और एक P इज इक्वल टू क्या होता है? V into I भी हुआ था। हुआ था कि बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट हुआ था। तो V कितना है? 200 वोल्ट। I कितना है? 1 एम्पियर। दैट इज व्हाट? 200 वाट। तो आपका पावर कितना हो गया? रिक्वायर्ड पावर इज 200 वाट। देखो, हमने पावर पढ़ा। पावर अगर इसकी सहायता से हमने बहुत सारे फार्मूला को डिराइव किया, उसका यूज बढ़ गया, फिर हमने फाइंड आउट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेकंड क्वेश्चन। यस, लिसन केयरफुली एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड केयरफुली। इज इट ओके स्टूडेंट्स? A 20 volt electric bulb is connected to a 20 volt battery of negligible resistance. Okay, negligible resistance means, and after that the resistance offered by a bulb is 5 ohm.
find current flowing through a bulb, power of the bulb, and electrical energy consumed in 3 hours. So firstly we have to write what is given. What is given? Voltage of electric bulb. Voltage of electric bulb is given how much? 20 volt. Now resistance of electric bulb is given how much? 5 ohm. And time is also given. Time is also given 3 hours. We have to convert in second. 3 into 60 into 60. How much? How much? 0, 0. Okay. 1080 सेकेंड. ये मेरा काम था. अब हम लोग चलते हैं. Now, question number 1. Current flowing through a bulb means we have to find what? I. And two things is given. And by Ohm's law, V is equal to IR, and we have to find I is equal to V by R. V is given and R is also given. Then when we put the value, V is equal to 20 volt and R is equal to 5 ohm, that is how much? 4 ampere. Means the first answer is, the required answer is electric current flowing through a bulb is 4 ampere. Very good, 4 ampere. That is the first answer. First answer कितना हो गया? 4 ampere. By Ohm's law, V is equal to IR, then I is equal to V by R. Is it clear? Now, next question. Power. P is equal to power. हमने फॉर्मूला बताया था आपको. I have already earlier I have told you. P is equal to V into IV होता है बच्चों. होता है. Now V means what? अभी हमने फाइंड किया था. V कितना है? 20 वोल्ट. I हमने निकाला है. कितना निकाला है? यहाँ हमने 4 एम्पियर निकाला था जी. V is equal to IR. I is equal to what? V by R. V means 20 और that is how much? 5. 4 एम्पियर निकाला था. चलो 4 कितना होगा? 80 वाट. that is वाट. तो पावर सेकंड का क्या हो गया? कितनी आंसर आई 7 का? 80 वाट. ठीक है, 80 वाट. इसका कितना गया? 80 वाट. ठीक है, 4 एम्पियर एंड 80 वाट. इज इट क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Electrical energy is equal to work done. और आप इसमें पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे. V into I into T आया था बच्चों. ठीक है. W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में जब उस पर पुट किए थे ये भी फॉर्मूला आए थे. V इंटू आई इंटू टी. चलो V की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट. I की वैल्यू कितनी है? 4. टाइम कितना है? 10800. नो मीन्स 80 into 10800, that is how much? 86400. That is what? Joule. Okay, that is Joule.
or I have told you 1 kilowatt, or you consider, and whenever you have to convert into kilowatt hour, then what happens? You have to divide by 3.6 into 10 to the power 6. Okay, 1 kWh. Then how much? You will get 0.24 kWh. That is W is equal to the electrical energy. Okay, electrical energy means what? ये फॉर्मूला होता है V पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिकल इनटू टाइम। VI की वैल्यू हमने कितना आया था? 80 आई थी, चलो ठीक है। और T का कितना आया? 10,000 yes 10800। ओके, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 86400। ये क्या है? ये आपका जूल में आया नहीं। तो फिर हमने क्या है, इसको कन्वर्ट किया kWh में। उसको 3.6 into 10 to the power 6 को जब हम उसको डिवाइड करेंगे, then we get what? That is kilowatt, and that is equal to 0.24 kWh। कितना आया? 0.24 kWh। That is your answer। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको आप अपने बुक से बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है, सब बन जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाना है, सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।